students, now we are going to describe about the reproduction of pteridophyta. Actually, reproduction of pteridophyta may be asexual type or sexual type, both. Listen carefully, asexual and sexual type both. The asexual reproduction occurs by means of adventitious bud of rhizome. Listen carefully, it is by means of adventitious buds of rhizome, and there is fragmentation in rhizome. Fragmentation in rhizome. Only two way of asexual reproduction. As I have aware you, the stem-like structure in pteridophytes. Suppose that this one is the stem-like structure, underground structure that has the rhizoids. This is called rhizomes. The rhizomes form little buds, and these buds later detach from the main body to grow into new young one. That is called as fragmentation. That is called as adventitious bud of rhizome. But in the second way, fragmentation of rhizome, actually what happened in the rhizome, listen carefully, rhizome break or crack from any part, from any piece, due to any physical or any mechanical way. That is, suppose that this part get break out from the main body, then it will get separate out and germinate to grow into new young one. That phenomenon is known as fragmentation. It is not more important in class 11, but it need to know about that. Now the basic important concept regarding the reproduction in pteridophyta is sexual reproduction. It need to clear concept, it need to explain you, and so be conscious and be focused on only sexual reproduction. Sexual reproduction in pteridophytes. Listen carefully. As you have pre-mindset, that is the main plant of pteridophytes is actually sporophytic in nature. They all are sporophytic in nature, that is diploid in nature, whole plants. But in case of bryophyte, they was actually haploid, that is gametophytic. Keep in mind. And they form very special structure in the leaf known as the sporophyll. Sporophyll. Listen carefully, what is sporophylls? The spore bearing leaf called sporophyll. Spore bearing leaf in pteridophytes called sporophyll. Now back to what happened in Dryopteris. It is all about the phenomenon of sexual reproduction, not only in pteridophyte. It is also for the Dryopteris. It may be asked, the examination questions may be asked regarding the sexual reproduction in pteridophytes or sexual reproduction in Dryopteris. So there is a very complicated word regarding some complicated word regarding sexual reproduction in Dryopteris or pteridophyta may come. So one by one you need to focus it. For example, the sporophyll. Sporophyll, the spore bearing leaf. Now back to what is sporophyll. The main leaf of Dryopteris, you have seen in the previous video lecture. Suppose that this one is the main leaf of the Dryopteris. After some time, in the ventral surface of the leaf, suppose that this is my palm, then this one is the dorsal surface and this one is the ventral surface. ठीक है, जो पीछे के साइड में होता है उसको बोलते हैं जैसे मछली ऐसे चलती है, ठीक है, तो ये मछली का क्या हो जाएगा, डॉर्सल सरफेस, और ये हो जाएगा वेंट्रल सरफेस. मतलब जो नीचे बॉटम पे होता है आपका एब्डोमेन वगैरह, ठीक है, फ्रंट का पार्ट आपका क्या है, वेंट्रल सरफेस है, और बैक का पार्ट क्या, पीठ वगैरह, वो डॉर्सल सरफेस है. तो लीफ का जो फ्रंट का ऊपर का पार्ट होता है वहां पे नहीं, लीफ के पीछे वाले पार्ट को हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं. लीफ के पीछे वाले पार्ट पे ऐसे आपको स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, किसमें, टेरिडोफाइट्स के लीफ में. ठीक है, द स्पेशल स्ट्रक्चर यू आर सीइंग इज एक्चुअली द स्पोर, दैट इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, नॉट स्पोर, स्पोरेंजियम. द पाउच लाइक, बायोलॉजी में ये वर्ड कहीं भी आए बार बार तो इसको बोलते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर, स्पोरेंजियम, द स्पोर कंटेनिंग सैक लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, और इसके अरेंजमेंट को, लाइनिंग ऑफ स्पोरेंजियम को बोलते हैं सोराई. इट शुड बी इन योर माइंड, सोराई द लाइनिंग ऑफ
sporangium, the lining of sporangium, keep in mind. So the sori arranged on the ventral surface, so this should be the ventral surface of the leaf. Means not all leaves bears this kinds of spores, only few of the leaves, and that leaves are actually known as sporophyll. So the sporangium or spores bearing leaf is known as sporophyll. It should be in your mind. अब आगे आते हैं नेक्स्ट, लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसको आप मैग्नीफाई करेंगे, किसको, इस एक सिंगल स्पोरेंजियम को अगर आप मैग्नीफाई करेंगे ऐसे, तो इसमें एक वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर मिलेगा। सपोज दैट दिस वन इज द magnifying structure, this one is the magnifying structure, single sporangium, keep in mind, single sporangium, and plural will be sporangia, and if they are in the lining over the sporophyll there will be sori। तो ये बहुत सारे टर्म्स हैं छोटे छोटे, इस पे आपको फोकस करना है। इसका अगर आप टीएस काट रहे हैं ऐसे, अगर आप टीएस काटा है, जैसे टीएस और एलएस में क्या डिफरेंट है, देखिए ये मार्कर, इसको अगर ऐसे काटेंगे तो ये टीएस हो जाएगा, और इसको ऐसे काटेंगे तो एलएस। तो ये इसको ऐसे काट रहे हैं तो इसके टीएस कैसे होंगे, इधर मैं दिखा रहा हूं, लिसन, ये इसके अंदर का पार्ट है, ठीक, इसके अंदर के पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। एंड इनसाइड द स्ट्रोमा very special diploid spores are found. That diploid spores is known as spore mother cell. Spore mother cell, it is diploid. Listen carefully. Spore mother cell in other pteridophytes form in strobili or cones. Strobili or cones. लिसन केयरफुली, ये ड्रायोप्टेरिस पूरा स्ट्रक्चर, ये पूरा एक्सप्लेनेशन सिर्फ ड्रायोप्टेरिस के केस में है। बाकी के टेरिडोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें स्पोर्स किस्म बनते हैं स्ट्रोबिलाई में, ठीक है, इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में ये बताया गया था। इस पे आपको फोकस करना। व्हाट आर स्ट्रोबिलाई, स्ट्रोबिलाई आर कॉम्पैक्टली पैक्ड स्पोरोफिल। ये स्पोरोफिल क्या हो जाता है, ऐसे कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाता है, ठीक है, ऐसे कॉम्पैक्टली पैक होकर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई। इस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। अब हम इसको फोकस नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं, हमको सिर्फ आगे इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो ये स्पोर मदर सेल, नेम देखो, स्पोर मदर सेल, यानी किसकी मम्मी, स्पोर की मम्मी को बोलते हैं स्पोर मदर सेल। तो इससे क्या होगा, सीधी सी बात है, स्पोर मदर सेल है तो स्पोर्स होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये डिप्लॉयड है, लिसन केयरफुली, तो ये बाकी को बनाने के लिए इसमें मियोसिस होगा, ठीक, इसमें स्पोर मदर सेल में क्या हो जाएगा, मियोसिस, मियोसिस इन सिंगल स्पोर मदर सेल। लिसन केयरफुली, इसमें एक में मियोसिस होगा तो 4 क्या बनेंगे, 4 हैप्लॉयड स्पोर्स, ठीक है। तो सब में होगा, देयर आर 1000 ऑफ द स्पोर मदर सेल इनसाइड द सिंगल स्पोरेंजियम, सो देयर विल बी 4000. If there are 2000, there will be 8000 spores formed. But what are the difference between spore mother cell and spores? Spores are actually haploid and spore mother cells are actually diploid. Keep in mind. ये spores 2 टाइप के होते हैं. Spores you have seen is actually 2 types. Some spores are abnormal in morphology. कुछ छोटे बड़े होते हैं और कुछ स्पोर्स क्या होते हैं, वो सब एक जैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो स्पोर्स बनाते हैं मियोसिस के थ्रू स्पोर मदर सेल, सब एक जैसा स्पोर्स बनाता है। डायोप्टेरिस में क्या होता है, एक जैसा डायोप्टेरिस एक जैसा स्पोर्स बनता है, ठीक है। डायोप्टेरिस में क्या होता है, एक जैसा स्पोर्स बनता है, और कुछ में क्या होता है, अनइक्वल स्पोर्स बनते हैं, अनइक्वल स्पोर्स बनते हैं, कुछ छोटे बनते हैं, कुछ बड़े बनते हैं। कीप इन माइंड, इस टाइप के स्पोर्स बनाने वाले प्लांट्स में ये क्या होते हैं, जो छोटे होते हैं वो फीमेल की तरह से बिहेव करते हैं, जो बड़े होते हैं वो मेल की तरह से बिहेव करते हैं, ठीक है। ये छोटे जो होते हैं वो मेल की तरह से और बड़े होते हैं वो फीमेल की तरह से बिहेव करते हैं, ठीक। बट इस तरह के स्पोर्स को बोलते हैं हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस
स्पोरस, इसको आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस, ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। तो ये इसको बोलेंगे होमोस्पोरस, होमोस्पोरस टाइप ऑफ प्लांट। और ड्रायोप्टेरिस कैसा प्लांट है? होमोस्पोरस टाइप। और हेट्रोस्पोरस टाइप वाले जो प्लांट है उसका भी एग्जांपल लिख लो कॉपी में, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया, सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। इस पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है ना। ये कहानी, अब हिस्ट्री जो है, हमारी जो स्टोरी है वो यहाँ से शुरू होगी, क्योंकि हम ये ड्रायोप्टेरी से पढ़ रहे हैं। बस आपको ये जानकारी के लिए जानना था कि जो हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं वो हमेशा ऑल टाइम इक्वल नहीं रहते, कभी कभी अनइक्वल रहते हैं, ठीक। जो बड़े होते हैं वो फीमेल की तरह से बिहेव करते हैं, छोटे वाले मेल की तरह से बिहेव करते हैं, वो हेट्रोस्पोरस टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं। और ये ड्रायोप्टेरिस क्या, होमोस्पोरस टाइप ऑफ प्लांट है। तो ये पूरा आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा करके यहीं से आप फोकस आगे करेंगे, ठीक है। यहाँ से टॉपिक्स को आगे फॉरवर्ड करेंगे। लिसन केयरफुली, दिस वन इज द होमोस्पोरस स्पोर्स, होमोस्पोरस स्पोर, एंड इट इज हैप्लॉयड। कैसे बना है? मियोसिस से बना, ठीक है। किससे बना है? स्पोर मदर सेल से बना है। हेट्रोस्पोरस में भी दो बनेंगे वो भी हैप्लॉयड ही रहेंगे, बट ये जो है इसमें मेल और फीमेल की कैटेगरी नहीं होती है, ठीक है ना। होमोस्पोरस में मेल और फीमेल की कैटेगरी इस टाइप का कोई स्पोर्स नहीं होता है, एक सिंगल ही होता है, ठीक है ना। सब एक जैसे आगे जर्मिनेट करके एक जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें अब क्या होगा? शुरू में जर्मिनेशन, ठीक है ना। ये जर्मिनेट करेगा कौन? ये होमोस्पोरस स्पोर्स होगा। इसमें क्या होगा? जर्मिनेशन होगा, ठीक है। जर्मिनेट करके ये एक कॉन्स्पिशियस स्ट्रक्चर बनाता है, कॉम्पैक्टली पैक्ड मल्टी सेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें आपको फोकस करना है, मल्टी सेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर बनाता है। इस तरह से हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनाता है, स्पंजी लीवर शेप, हार्ट शेप, जैसे मन करे वैसे आप इसको बोल सकते हैं। ये मल्टी सेलुलर होता है। पहली चीज की कुछ खास बात होती है, ये क्या होता है? ये मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर प्लांट नहीं, डायरेक्टली प्लांट नहीं बनाता होमोस्पोर्स, ठीक। और ये क्या होता है? हैप्लॉयड होता है, ठीक है ना। बाइसेक्सुअल इन नेचर होता है, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स इसमें डेवलप होते हैं। और ये क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ग्रीन होगा तो सीधी सी बात है कि ये फोटोसिंथेटिक होगा, मतलब ऑटोट्रॉपिक होगा। इसमें आपको फोकस करना। और इसका नाम क्या है? दैट इज नोन एज प्रोथैलस, प्रोथैलस, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा में थैलस डेवलप हुआ था और इसमें क्या डेवलप हुआ था? प्रोथैलस। तो ये इसमें रूट्स लाइक स्ट्रक्चर ऐसे डेवलप हो जाते हैं, दैट इज नोन एज राइजोइड्स। अब आते हैं, अब बाकी के आगे के स्टेप्स में क्या होता है। इसके टिपिकल पार्ट में क्या डेवलप होता है? आर्चिगोनियम, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आर्चिगोनियम, सिंगुलर आर्चिगोनियम एंड प्लूरल आर्चिगोनियम। और इसके बेसल पार्ट में क्या डेवलप होता है? एंथेरिडियम, मैच्योर होने के बाद, ठीक है। एंथेरिडियम और आर्चिगोनियम क्या है? एंथेरिडियम इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये एंथेरिडियम है, इसमें बहुत सारे क्या बनेंगे? एंथेरोजॉइड्स। और एंथेरोजॉइड्स क्या होते हैं? एंथेरोजॉइड्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, सब में फ्लैजिला होता है। और ये क्या है? आर्चिगोनियम एक फनेल और कप शेप स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, दैट इज नोन एज आर्चिगोनियम, जिसके अंदर एग सेल्स डेवलप होते हैं। लिसन केयरफुली, एग सेल्स, दिस वन इज द एग सेल, and that is the mouth of archegonium, and this one is the archegonium. Antheridium when become mature, that is this one is the antherozoids. When antheridium become mature, then each antherozoids become flagellated and released out from the antheridium. This one is the flagellated antherozoids and try to move to the archegonium. तो ये यहीं पे सिंगल प्रोथैलस पे, इसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें पानी की, बहुत ज़्यादा वाटर की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। देन दे मूव फ्रॉम द एंथेरोजॉइड्स फ्रॉम द एंथेरिडियम and reach to the neck of archegonium, and then one of the any antherozoids fuse with the egg cells of archegonium to form zygote. What is zygote? The diploid primitive structure after syngamy called zygote.
This one will be the haploid. Egg cell remain haploid. Then the haploid and haploid form the diploid. That is N and N form 2N. Antherozoids N, egg cells N, and zygote will be 2N. Then zygote where form? Zygote form in the archegonium. That later develop into embryo. Keep in mind, embryo, and that is embryo is sometimes show the seed behavior. That embryo inside archegonium show the seed behavior, but actually they do not bears any kinds of seeds. Pteridophyte do not bears any kinds of seed, but they show the seed behavior, and that embryo later germinate to form the complete plants, as you have pre-mindset regarding the plants of Dryopteris. That is very important. Keep in mind, it should be in your copy by means of their full explanation, by means of full diagram. Reback the video and one by one explained it. Thank you.